So okay, the thing we're discussing, that's why we will use this IP root 192.168.2.0. That means inside this, if the IP address contains like this, that means all the systems that IP address contains with 192.168.2. That means all the host ID and network ID, these two are divided. So if the host ID is same like that, that means they are present in this network. So that's why this is the network ID. And after the network ID, we'll use the subnet mask and then 10.1.2. So that means all the packets that is to be sent to this network ID or the network, the packets will go to with from 10.1.1.2 through this port, the packets will go. Now we will do what? We will use this, and in so this is we will again goes to the first router in R1, and in this R1 we will enable config T to enter the configuration, and we will paste it. So after pasting it, we will end the configuration mode, and after ending the configuration mode, we will use show IP root. Now we will use the command show IP root. Now if you use the command ship root, then you will see, when you will use this, you will see that here the course C is for connected, S is for static. So that means static routing we are used. IGRP, then RIP. So RIP is what? If in the class I have discussed, RIP is what? RIP, routing information protocol. That is R stands for this, routing information protocol. So you see OSPF, open source shortest path first, that all these protocols are present. If you use this command ship root, then it will show this. Okay, so now this means what? After using this, we will use the WR. So that means now from router 1, we can communicate with this portion, this network. From router 1, we can communicate with this network also, which is present in the different router. But same as that, it has to be done for router 2 also, because now it is only that router 1 has the information of this network, but router 2 doesn't have this informations about this network. So that means this configuration has to be done for also router 2 also. So in case of router 2, the thing should happen that IP root, in this case, it will happen. We will use IP root. This will be 1.0. This will be 1.0. And there will be the slight change. It will, the port ID is 10.1.1.1. So we have to do what? To copy it. And let's say we go here. And after that, we will put enable command, then config T. After that, we'll paste it. Then end. Then we will see sh show IP root. Show IP root. So it is showing the show IP root. So using WR, we will save it. So now let's start to see that these two are communicating now or not. So ping
192.168.2.3. Okay. So first, let's start that it is communicating or not. First time it is request timed out. Yes. So first time you see, first two times it is request timed out. So next time you see that it is communicating. Yes, it is going. So all the 4 packets have been sent, are all these packets are received by this. So because now the router has the information, the router we have using the static routing, we have said that this is also a network, and in this network, this is the network ID, this is the through this port the packet should go. We already all the things we have configured. So that's why you see from this system we ping to this system. Now they are different networks, but previously when static routing we didn't use, in that time it is showing destination host unreachable. In that time it is showing that destination host unreachable. But now it is showing, you see that it is showing that all the packets are sent and it is received. Same as for checking of this also, we will check that from this system, from this, can we, from this, can we, any of the system, can we communicate? Because they are on the different networks, so vice versa. From this, I will see here also again. Now, let's say I use PNG ping. Now we want to communicate, let's say for this system. So 192.168.1.3. You see, the reply is going. So these two different systems, if they are present in two different systems also, they are communicating. In of these two systems, you see whether they are in the whether they are available on the two systems, though they are communicating in the two networks, they are present, but though they are communicating with each other. After giving the static routing, these two are communicating. So like this, the static routing occurs. So the static route can be assigned like this, and the router works with like that. Okay, clear? Yes sir. समझ में आया? Yes sir. समझ में आया सबको? ओके। और तुम लोगों का बाकी लोग कहाँ है? इतना कम अटेंडेंस, बाकी लोग कहाँ है सबका? तुम लोगों का कोई मतलब दूसरे लोग जो है सिर्फ ये 2-3 लोग, बाकी लोग कहाँ गया सब? बाकी से पता नहीं सर, बारूद नहीं होता सर। प्लेसमेंट का तैयारी हाँ। चल रहा है। हाँ ये भी हो प्लेसमेंट का सकता है। तैयारी ठीक है, प्लेसमेंट का तैयारी ठीक है, मगर क्लास में तो क्लास भी तो करना चाहिए ना। तो ये तो चीज मगर क्लास भी तो करना चाहिए। ठीक है, प्लेसमेंट का तैयारी ठीक है, वो चाहिए, बट सब्दिक को तो देख के है ना कि प्रीवियस क्लास में भी जैसे अरिजीत सर को भी हम सुने देखे कि बोलने की एक लोग सिर्फ प्रेजेंट था उन लोग का क्लास में, उसका क्लास में। तो जो भी हो ठीक है, मगर क्लास तो अभी करना चाहिए, नहीं तो कैसे होगा? सामने इंटरनल भी तुम लोगों का आ रहा है। तो ठीक है, इसको तुम लोग तब अभी रन करो, और हम इसमें दे रहे हैं सब टाइम दे रहे हैं कुछ, या अगर सर मैं उस टाइम के कॉन्फ़िगर लिए नहीं हो रहा देखो है 10। हाँ, सर, कॉन्फ़िगर कॉन्फ़िगर नहीं नहीं हो हो रहा रहा है है? सर। ठीक है, ठीक है, हम तो ऑनलाइन देखेंगे। तो बाकी सबके लिए हम 10 मिनट टाइम दे रहे हैं, ठीक है? 10 मिनट है। तुम सूरज, तुम्हारा प्रॉब्लम हम देखेंगे, हम ऑनलाइन देखेंगे उसका, कि कैसे किए तुम, हम तो सारा देखेंगे, कुछ उसका सर कर कोई चुके हैं, तो प्रॉब्लम नहीं। देख लीजिए ना सर, हो गया सारा कुछ। अच्छा, सर ज्वाइन कर लें लैपटॉप। ठीक है। सो बाकी लोग का सबका हो गया? तो डॉली, फिर निशु, उज्जवल, तुम लोग का हो गया है? तो तुम लोग का हो गया? सर मेरा हो गया, दिखाएं?
अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, तुम हम तब दिखा दो, हम स्टॉप शेयरिंग कर देते हैं। हाँ, लो डॉली एक बार दिखा दो, फिर सूरज तुम्हारा देख रहे हैं हम, तुम तुम्हारा देखेंगे। ठीक है, ठीक ठीक। दूसरा नेटवर्क का देना, वो दूसरा नेटवर्क का। हम्म, फिर और एक बार उसको उसको पिंग करो, फिर सेम आईपी एड्रेस को और एक बार पिंग करो, देखो आ जाएगा नेक्स्ट टाइम। और एक बार पिंग करो, फर्स्ट से रिप्लाई आना स्टार्ट होगा। वो ईआरपी के लिए हुआ था, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, सभी हम डिस्कस करेंगे क्लास में। ये फर्स्ट जो होता है फर्स्ट वाला, इसीलिए तब तुम्हारा रिक्वेस्ट टाइम आउट दिखा दिया। ओके, यस सर। और समझ में आया तो कैसे क्या हुआ यस पूरा सर। टोटल चीज? ठीक यस है, सर। स्क्रीन शेयर स्टॉप करते हैं। हाँ सुरेश। हाँ सर। हाँ 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 हाँ, तब दिखाओ क्या दिक्कत हो रहा है, दिखाओ। सर अभी और करवाइएगा कि हो गया आज का? नहीं, आज का हो गया है, आज और नहीं करेंगे हम। सर हम लीव करें? हाँ ठीक है, लीव कर जाओ। थैंक यू। सर। हम्म। हेलो सर। तो हाँ। इसमें मेरा पिन करते तो उससे कोड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तुम देखो, ये वाला जो है तुम्हारा रेट दिखा रहा है, ठीक है? तो हाँ सर। तुम ये इसका सब कॉन्फ़िगर किए थे, तो मतलब हर आईपी एड्रेस जो था, आईपी एड्रेस हर सिस्टम्स का आईपी एड्रेस नहीं, कॉन्फ़िगर वही किए थे? कॉन्फ़िगर नहीं किए सर। नहीं सर। अच्छा अच्छा अच्छा, हम बोल दे रहे हैं आईपी एड्रेस का कॉन्फ़िगरेशन करो खोल के। डबल के साथ है सर। डबल कनेक्शन कर दिए तुम। हम्म, ये ऊपर वाला एकदम लेफ्ट लेफ्ट एकदम हाँ, यस करो। फिर इससे हम्म, टोटल देखो, एक जो ऑप्शन से वो जगह में आ जाएगा। नहीं आएगा, नहीं आएगा तुम। हाँ हाँ हाँ, गए थे जहाँ, एकदम राइट वो कर साइड रहे में। सर, कर रहे। तो सर इसमें से कॉपी कहाँ से करना है? नो अब करना है सर यहाँ पे? हम फर्स्ट से हाँ, उधर नो करना है। ठीक है। हाँ सर, उसके बाद? इसके अब बाद? ये जो फर्स्ट पूरा लिखे हो, ठीक है, फर्स्ट, उसके पूरा टोटल जो ये डॉट 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 दिया हुआ है उसके आगे तक, हाँ। हाँ सर, यहाँ तक? फर्स्ट वाला तुम एक चीज बोलो सुरेश, तुम एक चीज हाँ बोलो, सर। तुम जो मतलब जो सिस्टम्स नीचे है, जैसे 182.168.2.2 जैसे लिखे हो, जो सिस्टम्स का आईपी एड्रेस लिखे हो, हाँ जो सर। ये सब जो हाँ सर। नीचे जो सिस्टम्स है, ठीक है, उस सिस्टम्स का हाँ तुम सर। आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किए थे अंदर में जाके, डेस्कटॉप देन आईपी कॉन्फ़िगरेशन किए थे? ना, उसका भी नहीं किए सर। उसका आईपी कॉन्फ़िगर
अच्छा, तो फर्स्ट ये सब तो बंद प्रीवियस करो, ठीक है, ये सब बंद प्रीवियस क्लास हम करके शायद नहीं फर्स्ट किए आईपी। थे स्लिप ऑन। अच्छा ठीक है, हम क्या तुम सर? ये बंद करो, हम बोल दे रहे हैं कि कैसे करना है। इसको इसको सर। थोड़ा मिनिमाइज करके रखो, नोटपैड को, सर। नोटपैड को मिनिमाइज करो। अच्छा, अब सिस्टम्स के ऊपर जाओ, सिस्टम्स के क्लिक करो, ठीक है, देन डेस्कटॉप। डेस्कटॉप। हाँ, उसके बाद आईपी कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, अब ये आईपी एड्रेस दो, जो आईपी एड्रेस है 192। देन सबनेट मास्क ऑटोमेटिकली आ जाएगा, और डिफॉल्ट हाँ गेटवे सर। में क्या होगा, वो 192.168.1.1 192.168. डॉट 168.1.1। टू नहीं, वन, वन डिफॉल्ट ठीक है सर। गेटवे का वन। ऑपरेशन सर। ठीक है, अब क्रॉस कर दो, अब क्रॉस कर दो। कर दी। सेम एज दैट हर सिस्टम्स का ऐसे करना है, ठीक है सर, हम कर रहे हैं, तब हर तक कोई। सिस्टम्स का ऐसे करना है। हाँ सर, हम कर रहे हैं, तब तक कोई दूसरा ठीक है। भेजा हम कर लेंगे। ठीक है, तो स्टॉप कर देते हैं। हम्म तो स्टॉप शेयरिंग कर दो, शेयरिंग को स्टॉप कर दो, तुम करते रहो, हम देखते हैं। देन निशु, यस सर। निशु, यस सर। हाँ तुम्हारा प्रॉब्लम हुआ है ना, तुम कर पाए हो? सर 2 मिनट दीजिए ना, बस कर ही रहे, बस 2 मिनट, ऑलमोस्ट 10। आ, फिर क्या दिखाना होगा एक बार? यस सर, दिखा देंगे। यस सर। तो हम तो स्क्रीन शेयर करके रखते हैं, तुम वो इजी होगा स्क्रीन शेयर करके रखने से, क्योंकि तुम देख भी पाओगे। ओके सर।
सर कॉन्फ़िगर कर ली सर किसी को। अच्छा good. अब फिर राउटर को हाँ शेयर 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 करो, आप सब कर रहे हैं। देखते हैं। हाँ सर। अच्छा ठीक है। तो अभी क्या करना है तुमको, डिफॉल्ट गेटवे में सर ये जो राउटर राइट साइड में जो है डिफॉल्ट, अभी अभी राउटर का कॉन्फ़िगरेशन तुमको करना है, ठीक है। हाँ सर। जाओ राउटर के कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, वो नोटपैड में कमेंट लिखा हुआ है। हाँ सर। हाँ CLI सी नोटपैड नोटपैड खोलो, नोटपैड हाँ सर। में फिर उसके बाद एक बार देखने दो, तुम्हारा इंटरफेस मुझे एक बार देखना है, इसलिए तुम राउटर जो ओपन किए हो ना उसका एक बार विंडो को मिनिमाइज करो एक बार। हाँ इंटरफेस क्या है, F0/0 में 192.168.1.1 ओके। और ये देखो तुम कमेंट में फिर जो लिखे हो नो शेडन के बाद आईपी इंट F0/0, नेक्स्ट टाइम भी तुम वही लिखे हो, ये वाला ठीक है, फर्स्ट वाला हाँ ठीक है, बट नेक्स्ट नीचे आओ इसके। हाँ ये वाला क्या होगा, 0/1 होगा। 10.1.1 कहाँ पे है, 10.1.1.1 ये कहाँ पे है, F0/1 का है, तो इसलिए 0/1 का। 0/1 में सर। हाँ अब तुम इसको टोटल जो फर्स्ट पार्ट जो है, फर्स्ट पार्ट को टोटल कॉपी करो। आईपी पूरा रूट आईपी नहीं, रूट का आईपी सर। रूट को मत लेना, ठीक है। हाँ आईपी रूट सर। अभी मत लो, ठीक है। आईपी रूट हाँ सर बाद नहीं में ले रहे। देखेंगे, आईपी रूट मत। कॉपी फिर कर ली इसके सर। अंदर जाओ राउटर के, हाँ राउटर के अंदर जाओ। फिर एंटर, EN के मान। हाँ एंटर एंटर मारो। मारे अब सर। डायरेक्ट पेस्ट कर दो, पेस्ट पेस्ट ऑप्शन देखो विंडो के नीचे लिखता है। हाँ हाँ सर आ रहे हैं। हो गया ओके। अब इसमें क्या करना होगा, फिर एक एंटर मारो। सर। हाँ सर। एंटर फ्री गया, फिर एंटर मारो एक बार। एक बार और सर। एंटर एंटर लिंक। हाँ ठीक एंटर, है। उस उधर एंटर मारो। हाँ अब END एंड कमांड, END ये एंड कमांड, END हाँ। तो इसमें क्या होगा, ये एंड कमेंट्स देने से हम कॉन्फ़िगरेशन मोड जो है, कॉन्फ़िगरेशन हाँ सर। मोड से प्रिविलेज मोड में आ जाएंगे। तो एंटर करो अब एंड मार के, यस, देन अगेन प्रेस एंटर। हाँ सर। हाँ अब कमेंट लिखो SH SH जी सर। SH स्पेस, इनकम्प्लीट का नहीं नहीं कुछ पूरा और सर। ना, टोटल पूरा सुनो, कमेंट बाकी हाँ है। सर SH SS स्पेस स्पेस IP IP स्पेस INT then space BR DR। DR नहीं BR B for ball, हाँ सर वो सर। हाँ सर। B for ball, हाँ सर। yes, then enter। अब देखो कॉन्फ़िगर हुआ, अभी हाँ सर। कॉन्फ़िगरेशन हुआ। ये SHIPINTBR इस कमेंट का मीनिंग क्या है, SH का मतलब है शो, ठीक है। तो IP का IP मतलब है IP एड्रेस, इंटरफेस INT मतलब इंटरफेस, और BR मतलब ब्रीफ, ठीक है। शो IP इंटरफेस ब्रीफ, यही कमेंट है। तो इसको हम लोग लिखते हैं SHIPINTBR बोल के। अब देखो तुम्हारा इधर क्या दिखा रहा है, इंटरफेस,
इधर जो टेबल एक बना हुआ है, टेबल में इंटरफेस में क्या हाँ लिखा सर, रहेगा, 0/0 आईपी जीरो एड्रेस, उस 0/0 में 192.168.1.1, 98 मतलब ये जो मिल आईपी जाएगा। एड्रेस है ये 0/0 में क्या हुआ, कॉन्फ़िगर्ड हुआ। और कॉन्फ़िगर ओके यस एंड मैनुअल आप। अब देखो हम जब कमेंट पर लिख रहे थे उस टाइम बोले थे नो एसएच, ये बात हम लिखे थे। नो एसएच क्यों लिखे थे, हाँ क्योंकि सर, हम लोग का पोर्ट जो है पोर्ट डाउन रहते हैं, उस पोर्ट को अप करने के लिए, इसलिए तुम अभी मैनुअली आप देख रहे हो, मतलब पोर्ट जो है उस पोर्ट, वो पर्टिकुलर पोर्ट 0/0 इंटरफेस जो पोर्ट है वो क्या है, अप है। इसलिए अभी क्या है, हम नो एसएच कमेंट को यूज किए थे। ठीक है, तो अभी हाँ सर, ये टोटल तुम्हारा कॉन्फ़िगर्ड हो गया। तो अब कॉन्फ़िगरेशन हो जाने के बाद हम उस कॉन्फ़िगरेशन को सेव करते हैं। सेव करने के लिए कौन सा कमांड यूज करते हैं, सेव करने के लिए हम लोग WR तो WR दो, हाँ सर, इंटर ओके हो गया एंटर, सर, हाँ बिल्डिंग एंटर मारो। हो गया सर। देखो कॉन्फ़िगरेशन बिल्ड हो गया। ठीक है, हाँ सर, सेम एज दैट अभी राउटर 2 के लिए भी तुमको करना है। राउटर 2 जो है, राउटर 2 के लिए भी करना है ऐसे। तो फिर नोटपैड से राउटर 2 का कॉन्फ़िगरेशन एक बार दिखाओ, देखते हैं हम नोटपैड में तुम क्या लिखे हो। इसको मिनिमाइज करके दो, इसको मिनिमाइज करो, हाँ। हाँ सर, फिर नीचे मिनिमाइज जाओ, कर दे रहे अब राउटर, हाँ सर, हाँ अब राउटर 2 के लिए तुम क्या किए हो एक बार दिखाओ। R2 आया। उसको स्क्रॉल डाउन करो, हाँ 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 सर, EN, नहीं नहीं नहीं, हाँ, ठीक है सर। अच्छा EN कॉन्फ़िगरेशन T होस्टनेम ENF R2। अच्छा अब देखो तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा चेंज है, तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा चेंज है। अब तुमको उधर फर्स्ट कैसे? जो लिखे हो इंटरफेस F0/0, वो 0/1 हाँ सर, होगा, वो 0/1 होगा। तुम्हारा इंटरफेस थोड़ा चेंजेस है, वो F0/1 होगा। हाँ F0/1 और वहाँ सर ये जो इनकमिंग है उस राउटर 1 से तो F0/0 से यहाँ नहीं पे सर नहीं ये नहीं है नहीं, सर। वो वाला नहीं, वो वाला बाद में करना होगा। देखो अच्छा ठीक। अब ये जो है तुम्हारा, ये जो टोटल F0/1 है और वो हाँ वाला सर, F0/0 है, मतलब 10.1.1.2, ये पोर्ट तुमको F0/0 में करना है। और 192.168.2.1 ये वाला जो हाँ पोर्ट सर, है, ये तुमको सॉरी पोर्ट बोल रहे हैं, ये आईपी एड्रेस है, ये वाला आईपी एड्रेस को F0/1 इस इंटरफेस में तुमको डालना है। तो ये वाला तब तुम्हारा चेंज होगा, 192.168.1 लिख के क्यों रखते हो, 2 होगा तो ये तो वाला 2 है, 2.1, हाँ सर 2.1 सॉरी 2.1 हाँ नहीं 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 2.1। ठीक है, हाँ एंड हाँ नीचे 2.1 देखो, नीचे जो नो एसएच के बाद उसके बाद F0/0 होगा, हाँ ये ये क्या जीरो होगा हो गया सर। F0/0। इसका हाँ तो तो 2 हो जाएगा। ये 2 है, ये 2 ही है, ये हाँ ठीक लिखे हो, ये वाला 2 ही है, ठीक ठीक है सर। 1.1.2 ही है। ठीक है, नाइस सर। आप आईपी रूट के आगे तक इसको कॉपी करो। सॉरी हाँ, ये इसके बाद तो क्या कमांड बोल गया। तो ईएन देना, तुम डायरेक्ट पेस्ट कर दो, ईएन तो है ही उधर लिखा, तुम हाँ डायरेक्ट पेस्ट कर इनेबल दो, हो ईएन गया। को डिलीट करो। हाँ हाँ सर पेस्ट कर दिया। और इसके डायरेक्ट बाद पेस्ट करो, इनेबल हो जाए। हाँ इसके बाद क्या कमेंट, क्या करना होगा, सर तुम बोलो क्या करना होगा। इसको इंटर मारो, शो करना होगा। हाँ इंटर करके ऐसे शो, एंटर करके शो करना, एंटर करके एंड करके शो करना है।
इंट करके फिर शो करना है ना। Int अभी नहीं SS आएगा, आएगा नहीं। तुम कॉन्फ़िगरेशन मोड से देख रहे हो, कॉन्फ़िगरेशन मोड से तुमको निकालना है, उसके बाद ही तुम देख पाओगे। कॉन्फ़िगरेशन मोड से तुमको एंड करना है, उससे निकालना होगा तुमको यहाँ का कॉन्फ़िगरेशन डाल मोड सर, से। END यहाँ पे। हाँ सर, END, सॉरी, END END इंटर कंसोल हाँ, कॉन्फ़िगर अभी पॉइंट। एंटर करके फिर तुम जो लिख रहे थे शो IP int br, वो वाला करना होगा। हो गया सर। अब देखो, अब इसके साथ देखो इंटरफेस, सेम इंटरफेस में देखो, सेम इंटरफेस में ठीक से कॉन्फ़िगर हुआ क्या नहीं, मैच कर लो। तुम्हारा जो इंटरफेस है 0/0 में 10.1.1.2 वही तो 0/0 में है, देख लो एक बार हाँ उससे। सर, और 0, हाँ सर, 0/1 में से 0/1 में 90 कोई 92.168। हाँ सर, हो 192.168.2.1 ये, ठीक है। आप सेव कर दे तो सर, अभी क्या करना है, हाँ WR करके सेव सेव कर दो। करना है। हम्म, हाँ सर, बस अभी अभी क्रॉस कर दो, क्रॉस करके देखो दोनों अलग से सिस्टम को तुम पिंग कर पा रहे हो कि या नहीं, नहीं कर पाओगे ये। देखो फर्स्ट दोनों सिस्टम जो है, तुम जो सिस्टम चूज करो 192.168.1.2 ये वाला सिस्टम, अब पिंग करो कोई दूसरे वाला सिस्टम जो दूसरा नेटवर्क में है, हाँ सर, 219। दूसरा वाला नेटवर्क का, दूसरा वाला नेटवर्क का सिस्टम को हाँ करना है। सर, 213। हाँ सर, अब एंटर करो, क्या दिखा रहा है देखो, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल बता रहे। अनरीचेबल, क्योंकि अभी तक हम आईपी रूट कॉन्फ़िगर नहीं किए हैं। अब वो हाँ वाला सर, जो है आईपी रूट को कॉन्फ़िगर करो। अब आईपी रूट को कॉन्फ़िगर करने के लिए नोटपैड खोलो, ये जो लिखा आईपी हुआ रूट है वाज। एक बार हाँ मुझे, नॉट 2.1, हम क्या बोले, नेटवर्क आईडी ऑलवेज 0 होता है, ये क्या है, डिफॉल्ट गेटवे का है ये। 1 जो होगा, 1 मींस डिफॉल्ट गेटवे एड्रेस, आईपी एड्रेस। यहाँ सो यहाँ पे सर, ये जो होगा मेरा आईपी रूट, नहीं 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 नहीं, वो वाला कुछ चेंजेस नहीं करना। तुम जो लिखे हो कमेंट आईपी रूट, रूट। ऊपर में देखो, फर्स्ट ऊपर में देखो, हाँ हाँ ऊपर सर, में यहाँ फर्स्ट क्या करना है तुमको, दोनों राउटर का ही करना है, तुमको दोनों राउटर का ही तो करना है। तो इसमें क्या होगा, कौन से? दोनों राउटर के लिए आप तुम फर्स्ट राउटर में हो, तो तुम्हारा कम्युनिकेशन सेकेंड राउटर से करना है, तुम्हारा कम्युनिकेशन क्या है, सेकेंड राउटर से करना है। तो सेकेंड हाँ राउटर से सर, करने के लिए क्या करना होगा तुमको, आईपी रूट में इधर जो लिखा है तुम आईपी रूट हाँ सर, 192.168.2, और ये 1 नहीं होगा, नेटवर्क आईडी हम लोग का 0 होता है, ऑलवेज याद रखना कि 0 ओ होता है नेटवर्क आईडी। नेटवर्क तो आईडी ये 0। हाँ टू समझ। डॉट जीरो होगा, हाँ 2.0 होगा। अब इसके बाद देखो 255.255, इधर एक ज्यादा तुम डॉट लिखे हो, हाँ वो हाँ, वाला वो नहीं हटा होगा। दी सर। अब ये जो है, हाँ देन 10.1.1.2, ओके, ये वाला को कॉपी करो, अब ये वाला को टोटल कॉपी करो, हाँ कॉपी करो, हाँ सर, कॉपी कॉपी कर नॉट लिए। सेकंड राउटर, फर्स्ट राउटर में जाओ, इस राउटर में नहीं, वो वाला राउटर में होगा। हाँ सर, कर ली सर, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। हम्म, इधर इधर एंटर मारो पहले, फर्स्ट एंटर करो, पेस्ट डायरेक्ट पेस्ट नहीं होगा, तुम पहले तो हाँ तुमको सर, इंटर घुसना करके। है, तुम पहले घुसो। हाँ, इंटर कर दिए सर, अभी उसके बाद अभी क्या लिखना तुमको पड़ेगा? कॉन्फिग टी, उसके बाद तुमको कॉन्फिग टी लिखना होगा फिर, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन मोड में जो भी तुम ये काम करोगे सब कॉन्फ़िगरेशन मोड में ही होता है। तो फिर कॉन्फिग टी, कॉन्जिक लिखे हो, कॉन्फिग हाँ टी, हाँ सर, टी। हाँ सर, इंटर सर। एंटर करो।
हाँ एंटर। ओके अब पेस्ट करो, अब डायरेक्टली पेस्ट करो इसको। पेस्ट कर दोनों दोनों अलग हो गया, इनकम्प्लीट कमांड हो गया, वो एक साथ पूरा कमांड, वो एक साथ पूरा कमांड है जो आईपी रूट 192.168.2.0 देन 255.255 देन 255, ये 10.1.1.2 ये अलग नहीं है, एक लाइन का कमांड है पूरा, ये वाला एक लाइन का कमांड है। एक साथ लिखे सर, एक साथ लिखो, ये वाला एक लाइन का कमेंट है। उसको इसको इसको एंटर मारो, ये एंटर बोल रहा है कि बैक स्पेस मारो, देखोगे उस लाइन पे वो चला जाएगा। इस टाइप से सर, बैक स्पेस करो, हाँ देन स्पेस, हाँ ये टोटल एक लाइन का कमेंट पूरा। पेस्ट करें सर, ये इंटर करके हाँ एंटर करो पेस्ट करें। पहले, एंटर एंटर, जी सर। हाँ अभी पेस्ट करो। हाँ अब END एंड करो, END बोल के, END एंटर, फिर एंटर। अब उसमें लिखना, नहीं 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 WR डायरेक्टली नहीं, फर्स्ट तुम देख लो कि तुम्हारा आया कि या नहीं। तो इसीलिए उधर जब आईपी एड्रेस को देखने के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, SHIP_int_BR, तो इधर करना है SHIP रूट, SH लिखो, SH स्पेस IP इफ लिखे हो, इफ नहीं होगा, हाँ सर, IP स्पेस रूट ROUT, हाँ सर, ROUT, हाँ एंटर। अब देखो रूट हो गया है। अब देखो क्लास में जो जो हम पढ़ाए थे, देखो R बोल के जो लिखा है, RIP बोल के, देन OSPF, ये सब तो हम क्लास में पढ़ाए, OSPF इंटरनल एरिया। अब देख पा रहे हो, ये जो हम ड्राइंग करके क्लास में जब समझा दे रहे थे, सब चीज क्या है, हाँ सब सर। इसमें है। राउटिंग में हमको लगता है सब प्रोटोकॉल, ये सब देखो सब प्रोटोकॉल इधर डिफाइंड है। ओके तो अभी हाँ इसको सर, WR जो है, WR कमांड यूज करके सेव करो। ओके कट कर दे सर। सेम अभी जो सेकेंड राउटर के लिए भी ऐसे करना है, सेकेंड राउटर